اسلام نے عورتوں کو کیا دیا؟ یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ تنویر صاحب، آپ ہمارے سامنے اس عنوان کے اوپر گفتگو کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ایک سوال ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ برسوں سے اسلام کے اوپر الزامات لگتا رہا ہے، اور اسلام کے اوپر جو الزام لگتا رہا ہے ان میں سے ایک الزام یہ ہے کہ اسلام نے، ہمارا دھرم نے، ہمارا مذہب اور ہمارا دین اسلام نے عورتوں پر بڑا ظلم کیا ہے، بڑا انیائی کیا ہے، بڑا اتیاچار کیا ہے۔ اور اس بات کو ان لوگوں نے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، میگزین کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے اور میڈیا، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، ان تمام چیزوں کا سہارا لے کر ان لوگوں نے لوگوں کے ذہن میں اسلام کے خلاف یہ تصویر بیٹھانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ لوگ اس مشن میں کامیاب ہو گئے، اور لوگ یہ ماننے لگے، یہ سویکار کرنے لگے کہ واقعی اسلام نے عورتوں پر، مہیلا پر بڑا انیائی کیا ہے، بڑا ظلم کیا ہے، بڑا اتیاچار کیا ہے۔ تو اسی لیے آج میں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر پوری دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کروں گا، یہ میسج دینے کی کوشش کروں گا، اور خاص کر ان لوگوں کو جن کے ذہن میں یا دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اسلام نے عورتوں پر انیائی کیا ہے، کہ ذرا دیکھو اس کی حقیقت اور اس کی سچائی کیا ہے۔ آئیے بڑے ہی مختصر انداز میں اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تاریخ اٹھائیے، آپ اتہاس اٹھائیے، اور آج سے 1500 سال پہلے جائیے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ 1500 سال پہلے پوری دنیا کے اندر، خاص کر کے عرب کی سرزمین پر، عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، عورتوں کی کوئی ویلو نہیں تھی، عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ عورتوں پر کتنا ظلم ہوتا تھا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باپ کے مر جانے کے بعد، اور دنیا والوں سنو، اور ٹیلی ویژن کے ڈبے پر بیٹھ کر اسلام کے اوپر الزام لگانے والوں سنو، اور لوگوں سنو، آج بھی تاریخ کی کتابیں موجود ہیں، جاؤ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرو، تمہیں بھی معلوم ہوگا کہ ایک باپ کے مر جانے کے بعد باپ کی جائیداد میں، باپ کی پراپرٹی میں، باپ کی دولت میں، باپ کے مال میں بیٹا کو تو حصہ دیا جاتا تھا، اس کو تو مل جایا کرتا تھا، لیکن بیٹی کو باپ کے جائیداد میں باپ کے مرنے کے بعد حصہ نہیں دیا جاتا تھا، حصہ نہیں ملتا تھا۔ اور اگر کوئی عورت کبھی بغاوت پر اتر آتی کہ نہیں یہ مرنے والا میرا بھی باپ ہے، ان کے جائیداد میں مجھے بھی حصہ چاہیے، ان کی پراپرٹی میں مجھے بھی حصہ چاہیے، اور دنیا والوں ذرا سنو، عورتوں کو لے کر بڑی بڑی باتیں کرنے والوں سنو، اس عورت کو زندہ مار دیا جاتا، اس عورت کو زندہ قتل کر دیا جاتا، اور یہ کہا جاتا کہ تیری اتنی مجال کہ تو مرد کے برابر آ کے کھڑی ہو گئی۔ یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ اور لوگوں سنو، ذرا بتاؤ اس سے بڑا عورتوں کے لیے اپمان اور کیا ہو سکتا ہے کہ باپ کے مر جانے کے بعد ایک بیٹا کبھی کبھی اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا لیتا تھا؟ نعوذ باللہ۔ بتاؤ
दुनिया वालों तुम ही बताओ, मौलवी तनवीर को बताने की जरूरत नहीं है। बाप के मर जाने के बाद अगर सौतेली माँ जिंदा होती तो एक बेटा अपनी सौतेली माँ से निकाह कर लेता था, अपनी बीवी बना लेता था। क्या ये औरतों की इज्जत के लिए हनन नहीं है? क्या ये औरतों के लिए अपमान नहीं है? और लोगों कुर्बान जाओ इस्लाम के ऊपर। वो इस्लाम के दुश्मनों, जरा दिमाग का पर्दा हटाकर जरा देखो कि इस्लाम ही तो वो दीन है, इस्लाम ही तो वो रिलीजन है, इस्लाम ही तो वो धर्म है कि पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया, ओ लोगों अला तनकिहू मा नकाबाउकुम मिनन निसा, कि उस औरत से निकाह करना तुम्हारे लिए हराम है जो जिससे तुम्हारे बाप ने निकाह किया है। यानी इस्लाम ने खुले तौर पर यह पैगाम दे दिया कि ये लोगों तुम्हारे लिए तुम्हारी मां से निकाह करना हराम है। उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर दूसरी जगह पर बयान फरमाता है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, और लोगों तुम्हारे लिए तुम्हारी मां से निकाह करना हराम कर दिया गया है। यहां पर इस्लाम ने औरतों को सम्मान दिया। चलो आगे बढ़ो, क्योंकि मुझे इस्लाम ने औरतों को क्या हुकूक दिए उसकी तरफ में मुझे आपको लेकर आना है। ओ लोगों, इससे बड़ा औरतों पर और जुल्म क्या हो सकता है? जरा गौर करो। आज भी हमारे घरों में आज जो हमारी माई और बहनें, इन्हें भी हैज का खून आता है, इन्हें भी पीरियड का खून आता है। उस दौर में भी आता था। और लोगों उस दौर की बात कर रहा हूं, आज से 1500 साल पहले की बात है कि जब कोई औरत हैज की हालात में होती तो उस औरत को बाहर रखा जाता था, उसके लिए खाना का सामान अलग से तैयार किया जाता था। ये अन्याय और अत्याचार होता था। अब एक शौहर अपनी बीबी से बातचीत करना बंद कर देता था, उनके साथ बिस्तर पर सोना गवारा नहीं करता, उनका हाथ का खाना गवारा नहीं करता। ये अन्याय और ये अत्याचार औरतों पर क्या जाता था? वो दुनिया वालों, वो दुनिया की औरतों कुर्बान जाओ इस्लाम के ऊपर। जब इस्लाम आया तो ये पैगाम दिया, ओ लोगों अगर तुम्हारी बीवियां हालत हैज में हो, अगर तुम्हारी बीवियां अगर पीरियड के दिनों में हो तो तुम अपनी बीवी के साथ सब कुछ कर सकते हो, सो भी सकते हो, खाना भी खा सकते हो, तुम बातचीत भी कर सकते हो, जाओ दो दिल चाहे तुम कर सकते हो। लेकिन हाँ, बस इतना याद रखना, उस हालात में तुम अपनी बीवी के साथ तुम हम बिस्तरी नहीं कर सकते हो। दुनिया वालों देखो, सिर्फ इस्लाम ने बताया नहीं। आओ अगर तुम्हें तौफीक हो तो कभी इस्लाम की किताबें भी पढ़कर उठाना। हमारी माँ उम्महातुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती है कि जब मैं हालत हैज में होती, बर्तन के गिलास के जिस जगह पर मुंह रख कर मैं पानी पीती, वही गिलास वही बर्तन मैं नबी के सामने पेश करती, नबी भी उसी जगह पर मुंह लगाकर मुंह रख कर पानी पीते हैं। और लोगों जरा देखो, इस्लाम ने सिर्फ बताया नहीं बल्कि नबी ने तो प्रैक्टिकल करके भी इसको दिखा दिया। आओ मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि इस्लाम ने औरतों पर कितना यानी भला क्या है, इस्लाम ने औरतों के ऊपर इन औरतों को कितना उनका मकाम बुलंद किया है, कैसे बताऊं? बस इतना समझ लेना। डंके की चोट पर एक मुसलमान होने के नाते ये चैलेंज कर जा रहा हूं। हालांकि चैलेंज करना मेरी आदि नहीं है, मैं इसके आदि नहीं हूं। उसके बावजूद भी अगर बात इस्लाम क्या है तो मैं अलान डंके की चोट पर यह चैलेंज कर जा रहा हूं उन लोगों के लिए जो लोग कह रहे हैं कि इस्लाम ने औरतों पर बड़ा अन्याय किया है, इस्लाम ने औरतों पर बड़ा जुल्म किया है। आओ तो सही। अरे सोशल मीडिया के ऊपर बोल देने से और टेलीविजन के डब्बे पर कुत्तों की तरह भौंक लेने से क्या होता? आओ तो कभी मुकाबला तो करो, मैदान पर आओ, हम तुम्हें बताएंगे कि इस्लाम ने औरतों पर जुल्म क्या है, ये इस्लाम ने औरतों का मकाम और औरतों की हैसियत को इस्लाम ने बढ़ाया है। आओ तो सही। और हाँ, खाली हाथ मत आना। अगर सच बताऊं तो कहते यार तनवीर आलम हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं। मैं जानता हूं हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करता है तो चर्चा नहीं होता।
कुछ भी बोलूं कहते हैं यार ये तो हमारे धर्म को ठेस पहुंचाने वाले लोग हैं, हेट स्पीच देने वाले लोग हैं। जाओ तनवीर को सलाखों के अंदर डालो। हम ये भी नहीं बता सकते कि इस्लाम ने औरतों पर जुल्म नहीं किया है। ये हालात आज पैदा कर दी गई है इस देश के अंदर। आओ दावे के साथ कहता हूं, मेरी बातें रिकॉर्ड हो रही है, पूरी दुनिया देखेगी। जितनी भी किताबें हैं, मैं किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा हूं, छुपके से नहीं कह रहा हूं, हलाल ऐलान कह रहा हूं। जो भी मेरी बात सुन रहे हैं या जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जितनी भी तुम्हारी किताबें हैं, ऋग्वेद से लेकर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कल के पुराण, भगवत पुराण, 18 पुराण, भविष्य पुराण, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत गीता वगैरह वगैरह, जितनी भी किताबें हैं लाओ, हम सिर्फ कुरान लेकर आएंगे। अगर तुमने दिखा दिया कि इस्लाम ने औरतों पर जुल्म किया है, या फिर तुमने दिखा दिया कि तुम्हारा यानी तुम्हारी किताबों ने इस्लाम का मकाम आगे बढ़ाया है, तो रब्बे काबा की कसम जब तक जिंदा रहूंगा कभी इस स्टेज के ऊपर कदम नहीं रखूंगा। आओ तो सही, लेकिन नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? आज बड़ी बड़ी फेंकने वाले, आज भौंकने वाले, तुम्हारी ही तो ये परंपरा है ना। सती सावित्री किसकी परंपरा है या किसकी परंपरा थी? तुम्हारी परंपरा थी। अगर इसको किसी ने खत्म किया तो इस्लाम ने खत्म किया। शौहर मर गया, शौहर के साथ बीवी को भी उसी चिता में, उसी आग में जला दो। ये किसकी परंपरा थी? इस पर कौन लोग अमल करते थे? आओ जरा बताओ तो सही दुनिया वालों को। तुम आया, तुमने नारा लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, माफ कीजिएगा। मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूं, क्योंकि बहुत पीछे पड़े हैं वो लोग। आप लोग मालूम है, आप लोगों को बहुत पीछे पड़े हुए हैं। तुमने आया, एक नारा लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो तुमने समझ लिया कि हम इन औरतों को कुछ दिया है। अरे मूर्खों, नालायकों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कभी आगे बढ़ो, इस्लामिक किताबों का मुताला करो, तुम्हें मालूम होगा कि इस्लाम ने उस दौर में बेटी बचाओ का नारा लगाया था कि जब बेटी पैदा होती ही उसको जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। उठाओ कुरान, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, व इदा बुश्रा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कदीम यतवारा मिनल कौम मिन सूइ मा बुश्रा बिही अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। उन लोगों का ऐसा भी टाइम था, उन लोगों एक ऐसा भी दौर था कि जब किसी घर में बेटी पैदा होती तो बाप पशु पेश में पड़ जाया करता था। क्या मैं क्या करूं, मैं इस हालात में मैं क्या करूं? मेरे घर में बेटी पैदा हो गई, अगर मैं बेटी को पालता हूं, अगर मैं इसकी परवरिश करता हूं तो दुनिया वाले मुझे जलील कहेंगे, दुनिया वाले मेरा मजाक बनाएंगे। इससे बेहतर यही है कि बेटी को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दूं। उन लोगों इस दुनिया के अंदर ना जाने कितने लोगों ने अपनी बेटी को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ा था। इमाम बगवी रहमहुल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, मेरा कौल नहीं, इमाम बगवी बहुत बड़े इमाम है। इमाम बगवी रहमहुल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि जब एक बेटी 6 साल की हो जाती है, जब भी ये वाकया पढ़ता हूं या जब भी कहीं पर बयान करता हूं तो आंखों में आंसू आ जाता है। एक बेटी जब 6 साल की हो जाती, वो लोग कितने बड़े कितने बेमुरवत लोग थे, जरा गौर कीजिए। बाप जंगल में जाता, गड्ढा खोदता, जमीन को खोद खोद कर बाहर निकालता। जब गड्ढा तैयार हो जाता घर में आता, घर में आने के बाद बाप बीबी से कहता, ओ मेरी बीबी जाओ बेटी को नहलाओ, बीबी जाओ बेटी को लिबास पहनाओ। बीबी पूछती शौहर अचानक क्या बात है, बेटी को कहाँ लेकर जाने वाले? बाप जवाब देता, यानी शौहर जवाब देता, क्या आज उसको घुमाने के लिए लेकर जाने वाला हूं। 6 साल की मासूम बच्ची है वो। मीडिया वालों, अगर तुमने अपनी माँ का हलाल दूध पीकर अगर तुमने बड़े हुए हो, कभी इस वाकया को भी कभी टेलीविजन के डब्बे पर बैठकर चला देना। 6 साल की मासूम बच्ची है, 6 साल की मासूम बेटी है,
बेटी को मालूम नहीं कि कुछ ही देर के बाद मेरा बाप मुझे जिंदा जमीन के अंदर गाड़ देगा, जिंदा जमीन के अंदर मुझे यानी मिट्टी में दफन कर देगा। माँ जब बेटी से कहती है बेटी आजा नहा ले, लिबास पहन कर तैयार हो जा, आज तेरा बाप बड़े दिनों के बाद तुझे बाहर घूमने के लिए लेकर जाने वाला है। बेटी भी खुशी खुशी तैयार हो जाती है, कोई बात नहीं माँ मैं नहा लेती हूँ। और लोगों ये बेटी को मालूम नहीं, खुशी खुशी नहाती है, लिबास पहनती है, बाप की उंगली पकड़ कर चलना शुरू कर देती है और ये बाप उस बेटी को आगे ले जाकर जिंदा जमीन के अंदर गाड़ देता है, जिंदा जमीन के अंदर दफन कर देता है। यही तो इस्लाम है। ऐसे मौके पर बेटी बचाओ का नारा लगाया। इस्लाम ने दुनिया इंसानियत को ये पैगाम दिया। इस्लाम ने सिर्फ ये नहीं कहा कि ये मुसलमानों के लिए है, ये हिंदुओं के लिए है, ये सिखों के लिए है, ये ईसाई के लिए है, बल्कि इस्लाम ने तो पूरी दुनिया की बेटियों के लिए बयान फरमाया। और लोगों अपनी बेटियों को जिंदा जमीन के अंदर ना गाड़ा करो, और लोगों अपनी बेटियों को जिंदा जमीन के अंदर ना गाड़ा करो। कुरान कहता है वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। और लोगों याद रखो अगर तुमने अपनी बेटी को कत्ल किया, यहाँ पर बेटा को भी ऐड कर सकते हैं, उन्हें भी यहाँ पर मिला सकते हैं, लेकिन अगर बात बेटी की चल रही है तो मैं बेटी की बात बता रहा हूं। वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। ओ लोगों अगर तुम अपनी दुनिया में अगर अपनी बेटी को कत्ल करोगे तो कल कयामत के रोज तुम्हें अल्लाह की बारगाह में खड़ा किया जाएगा और तुम्हारी बेटी से पूछा जाएगा, तुम्हारी बेटी से सवाल किया जाएगा कि बताओ तुम्हें किस जुर्म के बिना पर तुम्हारे बाप ने कत्ल किया था, बताओ। इस्लाम ने 14, तुमने तो 2014 के बाद नारा लगाया, अरे इस्लाम ने तो 1400 साल पहले नारा लगाया और आज बात करते हो इस्लाम ने औरतों पर जुल्म क्या है। चलिए आगे आइए। अच्छा यहां पर ना एक बात मैं बता के जा रहा हूं आपके सामने। क्या आज चले गैरों की बात छोड़िए, हम अपनी बात कर रहे हैं। आज 1500 साल पहले ऐसा होता था, यह हकीकत है। क्या आज ऐसा नहीं होता है? क्या आज हमारे समाज में बेटियों को कत्ल नहीं किया जाता है? क्या आज हमारे समाज में बेटियों को जिंदा नहीं मारा जाता है? जी हां, आज भी हमारी बेटियां कत्ल हो रही है, आज भी हमारी बेटियां। फर्क क्या है? मैं फर्क आपको दिखा रहा हूं। 1400 साल पहले में और 2024 में बस फर्क इतना सा है कि 1500 साल पहले बेटी पैदा होने के बाद कत्ल करते थे और आज इस दौर में बेटी के पैदा होने से पहले कत्ल करते हैं। अस्पताल में जाते हैं, मालदा का वाकया है, अस्पताल में जाते हैं, मालूम चलता है कि पेट में बेटी है, गर्भ में बेटी है, डॉक्टर से कहते हैं हमें बेटी नहीं चाहिए, इसको दवाई दे दीजिए या ऑपरेशन करके इसको खत्म कर दीजिए। आज भी हमारे इस देश की बात कर रहा हूं, सैकड़ों बेटियां कत्ल की जा रही है, ऑपरेशन के जरिए से हो या दवाई के जरिए से हो, बहुत सारे तरीके आ गए हैं, आज भी किए जा रहे हैं। लेकिन याद रखना 1400 साल पहले जो लोग ये किया था उसको अल्लाह की अदालत में जिस तरह खड़ा करके उसकी बेटी से पूछा जाएगा, आपकी दाढ़ी देकर टोपी देकर और नाम देकर आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपको भी पूछा जाएगा। जिन्होंने बेटियों को जिंदा कत्ल किया था वो कितना बड़ा अपराधी है, आपने उसको मां के पेट में कत्ल किया, आप भी उससे कम बड़ा अपराधी नहीं है, यह आपको याद रखना पड़ेगा, आप भी बड़े अपराधी है। आज हजारों ऐसी खबरें हमारे सामने हैं कि बीवी के पेट से बच्ची पैदा हुई इसलिए नालायक ने बीवी को तलाक दे दिया। और आज मुसलमानों की मेंटेलिटी, मैं तो चाहता हूं कि बात को लंबी ना करूं लेकिन बात आ ही जा रही तो बोल दे रहा हूं। आज तो हमारी सोच और हमारी मेंटेलिटी ये है कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। अभी शादी नहीं हुई है, अभी शादी होने को बाकी है, लड़का लड़की पहले से फोन पे बतिया रहा है, बात कर रहा है, शादी के बाद कितने बच्चे चाहिए, बीबी लड़की कहती है आपको कितने चाहिए, लड़का जवाब देता है हमें तो बस 2 ही चाहिए, 2।
क्यों? क्योंकि इसका बाप ने जो नारा लगा के रखा है कि हम दो हमारे दो, ये मुसलमान थोड़ी है। अगर ये मुसलमान होता तो उन्हें वो हदीस भी मालूम होती कि नबी ने बयान फरमाया था तज़व्वजुल वदूद अल वलूद फ़इन्नी मुकाथिरुम बिकुमुल उमम। दूसरी हदीस में इसी तरह बयान है कि तज़व्वजुल वदूद अल वलूद फ़इन्नी मुकाथिरुम बिकुमुल अंबिया यौमल क़ियामा। तुम उस औरत से निकाह करो जो ज्यादा से ज्यादा बच्चा जनने वाली हो, ताकि मैं कल क़यामत के रोज अपनी उम्मत की तादाद को देखकर मैं फख्र महसूस करूं। नबी कह रहे हैं, हमारे रसूल हमें कह रहे हैं कि तुम उस औरत से शादी करो जो ज्यादा से ज्यादा बच्चा जनने वाली हो। और अभी शादी हुई नहीं, हमने पहले प्लानिंग कर लिए कि हम हमारे दो से ज्यादा नहीं लेंगे। इससे तो बेहतर है तू हिजड़ा से शादी कर ले, एक भी बच्चा नहीं पैदा होगा। हो सकता है कि मेरी बात आपको बुरी लगे, पर यह हकीकत है।